بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 40 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ کچن میں کھانے کی ٹرے واپس رکھ کر کچن سے باہر نکلتے کھاری کی نظر ماہنور پر پڑی، جو اپنا سیل فون ہاتھ میں پکڑے اس پر کوئی نمبر ملاتے ہوئے کچن سے ذرا فاصلے پر اندر جاتے سفید سلک کی برآمدے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کھاری کو ماہنور کے انداز میں اضطراب اور بے قراری کا احساس ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ماہنور کو اس کیفیت میں چکر لگاتے کتنی ہی دیر تک دیکھتا رہا۔ کھاری 15 منٹ تک اسی طرح چکر لگاتے رہنے اور فون پر کوئی نمبر ملاتے رہنے کے بعد ماہنور کی نظر اچانک کھاری پر پڑی اور وہ بلند آواز میں اس کا نام پکار کے اس کی طرف بڑھی۔ تم کہاں غائب ہو اتنی دیر سے؟ اس نے تیزی سے کہا۔ میں تو ادھر ہی تھا ماہنور بی بی، میں کدھر جانا سی؟ کھاری نے شانے پر رکھے کپڑے سے منہ پوچھتے ہوئے کہا۔ اپنے کی شادی کے دن سے اب تک تم نے شکل تک نہیں دکھائی اور کہہ رہے ہو کہ تم ادھر ہی تھے۔ اس نے یہ بات بھی تیزی سے کہی تھی۔ اچھا اس کو چھوڑو ماہنور باجی، یہ بتاؤ کہ باؤ سعد صاحب کہاں ہیں؟ کھاری نے ماہنور کے شکوے کی نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سعد؟ ماہنور کو لگا جیسے صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو صرف ایک ہی شخص کی لگن تھی، وہ تو چلا گیا۔ کھاری؟ اسے احساس ہوا جیسے وہ کھاری کو کسی انتہائی المناک صورتحال کی خبر دے رہی تھی۔ ہیں جی؟ کھاری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سچی دسو؟ ہاں کھاری، سعد تو یہاں سے چلا گیا ہے۔ ماہنور کو اپنی آواز کسی پاتال سے نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ کدھر چلے گئے؟ ماہنور باجی، میں تو بہن جی کو قول دے کر آیا تھا۔ کھاری کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے۔ بہن جی کو کیا دے کر آئے تھے؟ ماہنور نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ قول دے کر آیا تھا، میں سعد کو بہن جی کے گھر لے کر جاؤں گا۔ کھاری نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ وہ کیوں؟ ماہنور کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ اوہ! کھاری کو اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی بات کہہ چکا ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اوہ! اس نے کوئی بات بتانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں، اور میں بہن جی سے بہت تعریفیں کی تھی باؤ سعد کی۔ اچھا؟ وہ ماہنور کو ایسا لگا جیسے کھاری نے اپنی بہن جی سے سعد کی نہیں اس کی تعریف کی ہو۔ لیکن وہ گئے کہاں؟ ماہنور کو مطمئن کرنے کے بعد کھاری نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا گیا ہے۔ فون کر کے پوچھیں تو صحیح۔ کھاری نے ماہنور کے ہاتھ میں پکڑے سیل فون کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا فون بند ہے کھاری۔ ماہنور کے لہجے میں بے چارگی اور بے بسی اتر آئی۔ اوئے ہوئے! کی ہو گیا؟ کھاری پوری صورتحال جان کر ایک بار پھر پریشان ہوا۔ ماہنور باجی، میرا باؤ سعد سے ملنا بہت ضروری ہے۔ الفاظ ایک دم اس کے منہ سے پھسلے۔ اچھا وہ کیوں؟ ماہنور نے ایک بار پھر تعجب کا اظہار کیا۔ بس جی، یہ میں صرف ان کو ہی بتا سکتا ہوں۔ نہیں، میں تمہیں اس کا نمبر نہیں دوں گی، ماہنور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ تم کو سعد سے کیا بات کرنی ہے؟ کھاری نے ذرا کی ذرا ماہنور کی طرف دیکھا اور ایک دفعہ پھر اس سے نظر چرا لی۔ میں اب چلتا ہوں ماہنور باجی، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ باؤ سعد کا نمبر دے دیتے تو اچھا تھا، اس نے کہا اور بائیں جانب مڑ کر آگے چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماہنور نے اپنے چکر کھاتے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ تم کیوں ایک ایسا نیوکلیس بن گئے ہو سعد جس کے گرد سب گھوم رہے ہیں؟ اس نے تصور میں سعد کو مخاطب کیا اور تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اسے اپنا سامان پیک کرنا تھا اور اگلی صبح گھر واپس جانا تھا۔ چچا سردار کا فارم ہاؤس اچانک خالی اور ویران ہو گیا تھا۔ ایک نور کی لکیر نمودار ہونے کی دیر ہوتی ہے اور سارے مسئلے نبٹ جاتے ہیں۔ اس کی گاڑی کے قریب کھڑی نور فاطمہ نے الوداعی جملے کہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، خوشی محمد آ جاوے گا تو تیل بھی لے آ جاوے گا، درخت بھی ہٹ جائے گا، خوشی محمد تینوں سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ وہ اونچے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی۔ اب راضی ہیں کہ خون بھی تاپ چڑھا ہے؟ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ سعد گاڑی کے
सीटों और सामान के दरमियान अपना वॉलेट और फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसे वॉलेट ट्रैवल बैग की तरह एक छोटी जेब में अटका हुआ मिल गया, मगर फ़ोन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसने तेज़ी से बैग खंगाले, डैशबोर्ड, सीटें सब चेक कर लीं। कहाँ गया? वो पेशानी को हाथ से मसलते हुए बड़बड़ाया। क्या ढूंढ रहा है? नूर फातिमा ने इसके शाने पर हाथ रखकर पूछा। इससे पूछ रहा हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ गया? इसने नूर फातिमा की तरफ देखकर कहा। अच्छा, वो हंसी और उसके दांत और भी ज़्यादा नुमाया हुए। फिर तो मिल ही जाएगा, थोड़ा सा दम ले। वो तेज़ी से बोली। वाह भई नूर फातिमा, तुम और तुम्हारे फ़लसफ़े। यहाँ दिन चढ़ते ही दिल और दिमाग में फिर से आग ताज़ा हो गई और तुम सादा सांस लेने की बात करती हो। इसने बिना कर सीटों के पीछे नीचे हाथ मारा। एक फुट मैट पर इसका हाथ पड़ा और वहाँ नीचे इसे किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने फुट मैट उठाया। नीचे खामोश फ़ोन पड़ा था। ओह थैंक गॉड, वो बड़बड़ाया। मिल गया है कि नहीं? नूर फातिमा ने इसके चेहरे पर जाहिर होते इत्मीनान को महसूस करके सर आगे करके गाड़ी में झांका। मैं नहीं जानता नूर फातिमा कि तुम्हारे थ्योरी कितने फ़ीसद दुरुस्त है, मगर मैं तुमसे इस हद तक ज़रूर मुत्तफ़िक़ हूँ कि कल मैं रुका नहीं था, रोका गया था। मुझे दम लेकर सोचने की मोहलत दी गई थी कि मैं सोच लूँ। मेरे अंदर जो जंग छिड़ चुकी है, इसके आगे महाज तक जाने और ये देखने के लिए कि इस जंग को छिड़ने वाली फ़ौज के सिपह सलार ने चेहरे पर जो शील्ड चढ़ा रखी है, इसके कितने परत हैं। मैं जितना बेचैन हूँ, क्या ये बेचैनी मेरा काम आसान कर देगी? क्या मैं जिस हकीकत को जान लेने के लिए जगह बेजगह बेकरार फिरता हूँ, इस सिपह सलार के ज़र्रा बख्तर को फौज उतारने से मेरी बेकरारी नोच उतारने से मेरी बेकरारी दूर हो जाएगी, मेरी बिसारत तेज़ हो जाएगी और मैं वो सब कुछ जान जाऊँगा जो जानना चाहता हूँ। इसने गाड़ी के साथ पुश्त लगाकर नूर फातिमा को मुखातिब किया। पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे तेरी बोली समझ नहीं आ रही। नूर फातिमा एक मरतबा फिर दांत निकाल कर बोली। यूँ समझो, इसलिए इस ज़ुबान में बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ में ना आए, वरना मैं तुम्हारी बोली जानता भी हूँ, समझता भी हूँ और बोल भी लेता हूँ। इसने सर हिलाया और होंठ सुकेड़ कर आवाज़ निकाली, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस तरह रोके जाने का। रात तक जिस आग की तपिश मद्धम पड़ गई थी, दिन निकलते ही इसका लाव फिर से तेज़ हो गया। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी रूह, मेरा जिस्म भर भर जल रहे हैं, जलकर सोंधा हुए जा रहे हैं। और नूर फातिमा, तुम साबिर औरत हो, बहुत साबिर औरत। मेरे लिए दुआ करना, मुझे भी सब्र की दौलत अता हो जाए। इसने नूर फातिमा की तरफ देखा, जो कुछ ना समझते हुए मुँह खोले से देखे चली जा रही थी। ले खुशी मोहम्मद आ गया। करीब से ट्रैक्टर के इंजन की आवाज़ आने पर इसने पीछे देखा। अब दोनों भाई तेल भरो गाड़ी में और फिर तो अल्लाह बेली हो जा, तेरा रास्ता लंबा है और तुझे मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रात आ जाएगी। खुशी मोहम्मद ट्रैक्टर से छलांग लगाकर उतरा और हाथ में पकड़े केन में रबड़ का बारीक पाइप टिकाकर गाड़ी के अंदर टैंक में केन जोड़ने में मसरूफ़ हुआ। नूर फातिमा तेज़ कदमों से चलती अपनी कोठी की तरफ जा रही थी। साद ने खुशी मोहम्मद की मदद करना चाहिए, मगर इसने मना कर दिया। इसने एक तरफ हटकर अपना फ़ोन ऑन किया। इस तरह बेचैनी और बेकरारी से भरपूर बेशुमार टेक्स्ट मैसेजेस इसके सामने थे। हेलो, तुम कहाँ गए हो? साथ तुम एकदम कहाँ चले गए हो? तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है? तुम बगैर बताए कहाँ चले गए हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? साथ मैं और सरदार चचा सख्त परेशान हैं, प्लीज़ जवाब दो। पैगामात की एक कतार थी जो ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। इसने फ़ोन एक मरतबा फिर बंद कर दिया। आई एम सॉरी महानूर, मैं तुम्हारे तमाम तर दावों के बावजूद किसी की तवक्का पर पूरा उतरने का अपना ही कायम किया हुआ रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। इसने सोचा, खुशी मोहम्मद की तरफ देखा। लो भाई जी, इतना तेल पड़ गया है कि आप पेट्रोल पंप तक आसानी से पहुंच जाओगे। खुशी मोहम्मद ने पाइप लेवल प्लग से आगे अलग करते हुए कहा। बहुत शुक्रिया खुशी मोहम्मद। आहिस्ता कदमों से चलता खुशी मोहम्मद के करीब आया। तुम लोगों ने मेरी बड़ी मदद की, शर्मिंदा ना करो साहब जी। खुशी मोहम्मद मुस्कुराया। बेबे मेरी जल्दी है, बिल्कुल। मैं तो सोच रहा हूँ, पता नहीं इसने आपकी सवाद की सेवा भी की कि नहीं, जो बनती थी बहुत है इसका। इसने कनपट्टी पर उंगली रख कर इशारा किया।
میٹر گھوما ہوا ہے، جو جی میں آئے بس بولتی ہی چلی جاتی ہے۔ نہیں خوشی محمد، سعد نے اس کا شانہ تھپتھپایا، قدر کیا کرو یار، تمہاری بیبے علم کا دریا ہے، اس معرفت کی باتیں سیکھی نہیں ہیں، اسے سکھائی گئی ہیں۔ وہ جو لوگ صابر ہوتے ہیں، اللہ ان پر اپنی کچھ عنایتیں یوں ہی کرتا ہے۔ وہ بولتے بولتے ہنس دیا، اس کی ہنسی میں طنز تھا اور چبھن بھی۔ وہ تو میرے جیسے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ راستہ روک کر ایسے دریاؤں سے سراب ہونے کا موقع دیتا ہے، پر وہ اپنی بھانبڑ اونچے رکھتے ہیں، خود کو ان دریاؤں سے بچا کر بھسم ہو جانے کی راہ پر چل دیتے ہیں۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں باؤ صاحب، میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آتی، خوشی محمد نے جھیمتے ہوئے کہا۔ تمہارے سمجھنے کی ہے بھی نہیں یہ بات، سعد نے متوفیس کا شانہ تھپتھپایا۔ اس بیبے کی قدر کرنا سیکھو، اس نے کہا۔ یہ کچھ رقم ہے، اس نے والیٹ سے نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ بدقسمتی سے اس وقت میرے پاس اتنا ہی کیش ہے، یہ رکھ لو، بیبے کے لیے اس کی پسند کی چیز خرید لینا۔ اور نہ بابو صاحب، خوشی محمد بکھلا کر بولا، ہمیں رقمیں نہیں چاہیے، یہ رقمیں نہیں ہیں خوشی محمد، سعد نے اس کا ہاتھ بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ محبت ہے، شکر ہے، تشکر ہے اور خلوص ہے۔ خوشی محمد نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ سعد نے اس بات میں سر ہلا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی کے دروازے کی کھلی کھڑکی سے ہاتھ اندر ڈال کر ہارن بجانے لگا۔ ہارن کی آواز سن کر نور فاطمہ کوٹھی سے باہر نکلی اور ہاتھ سے رک جانے کا اشارہ کرتی ادھر کو لپکی۔ میں تیرے واسطے کوئی سوغات لینے گئی تھی، اس نے سعد کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ کا پنکھا اس کی طرف بڑھایا، اس کے کناروں پر خوش رنگ کپڑا چڑھا کر اس پر کانچ کے موتی لگائے گئے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس نے سعد کی طرف فقط سے دیکھا اور یہ اس نے کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی کھول کر اس کے سامنے کی۔ اس پوٹلی میں دیسی گڑ کی 3 بھیلیاں رکھی ہیں۔ پھر اس نے دوپٹے کی تہہ کھول کر کچے بھنے بھٹے نکالے اور ایک چیز نکال کے اس کے سامنے کی۔ یہ سب غریبانہ سوغاتیں ہیں، لیکن تو ان کو جب بھی دیکھے گا تجھے یاد آئے گا کہ نور فاطمہ کی کوٹھی کا پرونا بنا تھا اور یہ چیزیں اپنی بیوی کو دینا جا کر سعد کو محسوس ہوا، اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس خلوص کا بدلہ قیمتی سے قیمتی چیز کے ذریعے بھی اتارا جا سکتا تھا؟ اس نے وہ تینوں چیزیں پورے احترام کے ساتھ نور فاطمہ کے ہاتھ سے لے لیں۔ میرے لیے ایک دعا ضرور کرنا نور فاطمہ، اللہ مجھے تمہاری طرح صبر عطا کرے، اس نے کہا۔ کچھ گنوایا ہے؟ جب ہاتھ سے کچھ گنواؤ گے اس وقت پتہ چل جائے گا، صبر کی شے ہوتی ہے، نور فاطمہ نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے اونچے دانت ایک بار پھر نظر آئے تھے۔ یہ جو اپنے گلے میں توق تم نے اپنے ہاتھوں ڈال لیا ہے، اس کا بوجھ اٹھاتے کہیں ہلکان نہ ہونے لگو، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ عشق اور جنگ میں سب سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں، ابھی تو بیوی آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ یہ دانت بھی ہاتھی کے دانتوں کی طرح نمائشی ہیں، دکھانے کے ہیں صرف، اصل تو وہ چیز ہے جو دل میں ہے اور وہ پھوٹی پڑتی ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ جو پھوٹے پڑ رہے ہیں جو رکے ثابت نہ ہوں آگے چل کے۔ چلو ہٹو منوس ماری، ناس پیٹی، جب سے یہ کام سر انجام پایا ہے ایک بھی مبارکباد تمہارے منہ سے نہیں نکلی۔ کیا کروں، خدا لختی کہنے کی عادت ہے، لگی لپٹی نہیں آتی مجھے۔ خوب جانتی ہوں تمہیں لگی لپٹی آتی ہے یا نہیں۔ لوگوں کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر آشیرواد اور مبارکبادیں دینے والی کو آج لگی لپٹی کہنا بھی بھول گیا۔ قربان جاؤں میں تمہارے رنگ بدلنے کے۔ لوگ ہیں اور تم ہو، میں کیا کروں۔ مجھے اس بات کو سوچ سوچ کر ہول اٹھتے ہیں کہ یہاں کسی کو علم ہو گیا کہ اسلام آباد والے نے ڈولی اٹھا لی ہے تو کیا ہوگا۔ ڈولی اٹھا لی ہے؟ ارے کمبخت، تم تو ایسے بولی جیسے کسی نے جنازہ اٹھا لیا ہو کسی کا، اور تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے۔ اللہ کی بندی، جو بات منہ سے نکالنے کی نہیں ہوتی وہ تمہارے گلے سے پھٹے ڈھول کی طرح بجتی نکلتی ہے، تو میں کیا کروں۔ وہم ہے نا، کسی بھی رنگ میں صحیح زبان سے نکل ہی آتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا اپنے عاشقوں کی فہرست اتنی بڑھا لو کہ قدم قدم پر بارود بھری سرنگیں بچھ جائیں۔ چلو ختم، تم تو سوائے ڈرنے کے کوئی کام نہیں کر سکتی، جبکہ میرا تو دل چاہتا ہے چھت پر چڑھ کر بلند آواز میں گاؤں، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اف میری مدھوبالا، کہیں ترنگ میں آ کر ایسا نہ کر دینا، جانتی ہو
तीफे लाटर की छत तो इस छत के साथ ही मिली हुई है, और क्या है कि इसके कानों के पड़े ही पतले हैं। चलो भागो यहाँ से, भाई दरवाजे पर मलवानों का शागिर्द दस्तक दे रहा है, इसे खाना बांध दो। यहाँ खड़ी तो महज दिल ही में दहलाई चली जा रही हूँ। तुम खुद को सच सुनने के लिए तैयार रखा करो मेरी लाडो। इस्लामाबाद वाले के चक्कर में काफिरिस्तान में आग लग गई तो क्या होगा, ये भी सोच कर रखो। इसने इस छोटे से घर के गेट पर नसब कॉलबेल को तीसरी मर्तबा दबाया और जवाब का मुंतजिर हुआ। चौथी बार बेल करने से पहले वो सोच रहा था शायद घर पर कोई नहीं, लेकिन चौथी बार बेल के जवाब में बेल के साथ नसब इंटरकॉम पर आवाज़ उभरी। कौन? इसने जवाब में आहिस्ता आवाज़ में अपना नाम बताया। 10 सेकंड के बाद गेट खुल गया। मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मुझे मालूम है कि यह वक्त किसी के घर जाने के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं। इसने बगैर तमहीद बांधे कहा, किसी के घर जाने के लिए यकीनन मौजूद नहीं, मगर अपने घर आने का कोई मखसूस वक्त नहीं होता। जवाब में इस छोटे से घर की मालकिन को कहते सुना, अंदर आ जाओ बिला झिझक। वो एक तरफ होते हुए बोली, बहुत शुक्रिया। वो घर के अंदर दाखिल हो गया। क्या सोते से उठकर सीधे चले आए हो, और तुम्हारे चेहरे पर इतनी वहशत क्यों तारी है? एक अजीब सी ख्वारी टपक रही है तुम्हारे हुलिये से। इससे 2 कदम आगे चलते हुए बोली, यूं ही समझ लें तवील नींद से जागा हूँ और सीधा आपके पास आ गया हूँ। वो घर के दाखिली दरवाजे में रुकी और इसकी तरफ मुड़कर देखने लगी। लगता है बुरी तरह बढ़ाकर जागे हो शायद। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, आराम से बैठो, बेतकल्लुफ़ी से बगैर झिझके। लाउंज में आकर इसने सोफ़े पर रखे कुशन तरतीब से रखते हुए कहा। वो इसकी हिदायत के मुताबिक एक लॉन्ग चेयर पर नींद दराज हो गया। मैं गालिबन बहुत थक गया हूँ, इसने आगे मूंदते हुए कहा। इसने इसकी बढ़ी हुई शेव, उलझे बाल और शिकनों से भरपूर ट्राउज़र और शर्ट को देखा। इसने पैरों में फ्लिप फ्लॉप्स पहन रखे थे। इतने अमूमी हुलिये में वो कहाँ का सफ़र करके यहाँ पहुँचा था। इसके दिल में ये सवाल करने की ख्वाहिश उभरी, लेकिन इसने सवाल को ज़ुबान पर ना आने दिया। भूख भी लग रही होगी, खाना लाऊं? जी ज़रूर। वो सीधा होकर बैठा। आपको जहमत तो नहीं होगी, बेफिक्र रहो। वो लाउंज से मुंसलिक ओपन किचन में चली गई। मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ तुम, ये साथ ही बेडरूम है और इससे अटैच बाथरूम। स्टोव पर फ्राइंग पैन रखते खाने के लिए कुछ बनाते हुए बोली, हाँ ये ठीक है। वो उठकर मेज़बान के बताए बेडरूम में चला गया। ये एक छोटा सा गेस्ट बेडरूम था गालिबन, क्योंकि इसमें मौजूद फर्नीचर को सफ़ेद चादरों से ढका गया हुआ था। वो वॉशरूम में गया। सिर्फ 2 रातों के अंदर अंदर क्या से क्या और कहाँ से कहाँ तक देख आया मैं। मुँह पर पानी के छपाके मारते हुए इसने वॉश बेसन के ऊपर लगे आईने में अपना चेहरा देखा। इसे अपने चेहरे पर थकावट के साथ साथ इज़्लाल भी नज़र आया। इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर गीले हाथ मुंतशिर बालों पर में फेर कर इन्हें सीधा करने लगा। कुछ देर बाद दोबारा अपनी मेज़बान के सामने मौजूद था। आज मैंने अपने लिए चिकन चीज़ बॉल बनाया था, तुम्हारे लिए जल्दी में ये सब स्पैगेटी बनाई है। थोड़े मशरूम्स पड़े थे और चिकन, ये भी मेरी अपनी रेसिपी है, ट्राई करो, बहुत बुरी नहीं होगी। ये थोड़ा फ्राइड राइस भी हैं, चखो। मैं बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ। वहाँ मुँह हाथ धोने और बालों को गीला करके सीधा करने के बाद ओपन किचन में रखी छोटी सी डाइनिंग टेबल के तरफ आया तो उसके सामने पुरती से प्लेट्स और कांटे चम्मच रखते हुए बोली, हाँ 1 प्याला सूप एंड सार सौंप का, अलबत्ता मैंने इंस्टेंट सूप के पैकेट से बनाया है, पहले इसे पियो, तुम्हारी थकन कम करने में मदद देगा। चौधरी सरदार के पुरतकल्लुफ़ डिनर और नूर फातिमा की रोटी पर रखे प्याज कैरी और हरी मिर्चों की चटनी से लेकर इस इंस्टेंट सूप और स्पैगेटी तक का सफ़र कितना तवील है, कैसे कैसे तजुर्बों से भरपूर और कितनी तलखियों को साथ लिए हुए। इसने खामोशी और दिलचस्पी के साथ खाना खाया। इसे शदीद भूख लग रही थी और खाना तो वाकई अच्छा बनाया था। इसने खाना बनाने वाली के हाथों के जायके का दिल ही दिल में एतराफ़ किया। वो भी इसे खामोश तफसीर से खाना खाते हुए इतनी ही खामोशी से देखती रही थी। मुझे लगता है मैंने ये सब ख़त्म कर दिया। आपको अपने साथ खाने में शरीक होने की दावत देना भी भूल गया। मुझे शदीद भूख लग रही थी,
पेट भर कर खाना खाने के बाद इसने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। मैं लंच नहीं लेती, इसलिए रात का खाना जल्द खा लेती हूँ, इसने मुस्कुरा कर कहा और उठकर बर्तन समेटने लगी। तुम लाउंज में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, इसने कहा। आपके पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक रखा है तो बताएं, मैंने ज़्यादा खा लिया है, वो बेतकल्लुफ़ी से बोला। फ्रिज में देखो, कुछ टिन रखे हैं शायद, इसने इतनी ही बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। इसने उठकर फ्रिज खोलकर एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन निकाला और लाउंज में आकर बैठ गया। ड्रिंक का कैन खोलते हुए इसकी नज़रों के सामने एक मंजर घूम गया। आपका सेलफोन यहीं कि कहीं रखा है या अंदर है कहीं, इसमें क्रेडिट तो होगा। इसने सर उठाकर सामने किचन में मसरूफ़ मेज़बान को देखा। क्या बात है, वो इसकी तरफ घूमी। मुझे यकीन है किसी राहज़न के हाथ नहीं लगे तुम। राहज़न, इसने सॉफ्ट ड्रिंक का कैन सोफे के बाजू से होले होले टकराते हुए दोहराया। राहज़नों की भी तो कोई किस्में होती हैं ना। इसने एक नज़र इसके सेलफोन पर डाली और फिर सर हिलाया। चलें रहने दें, आपका नंबर देखकर किसी के ठिठक जाने का अंदेशा है। वो अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींचते हुए बोली। राहज़नों की कौन सी किस्म है से जा टकराए तुम? राहज़न से वास्ता तो शायद किसी और का पड़ा, मैंने तो सिर्फ इससे तारुफ हासिल किया है अभी। वो कुछ सोचते हुए बोला। किसका वास्ता पड़ा राहज़न से? वो छोटी सी तश्तरी में कॉफ़ी के कप रखे इधर आई और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। शायद बहुत सौ का, शायद हर किसी का, शायद आपका भी। इसने अपनी मेज़बान की तरफ गौर से देखा। बॉस के ऊपर वाली मंजिल टेढ़ी हो रही है, डेयरिंग टावर की तरह, राजी ने इस रात सूनी को बताया। वो तो जाहिर ही है, मजदूरी ने इत्मीनान से जवाब दिया। बॉस की शख्सियत के फाउंडेशन में गड़बड़ है और तुम जानते हो, फाउंडेशन कमज़ोर हो तो इमारत इतनी ही कमज़ोर होती है जैसा लीनिंग टावर के टेढ़ा होने में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बॉस के पास बज़ाहिर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। वो काया आदमी है, इसे पता है कैसे क्या छुपाया जा सकता है, फैक्टर भी और इनके आफ्टर मैथ्स भी। इस जैसों के लिए डंप करना कोई मुश्किल नहीं। अच्छा अब ये बोलो कि आज ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये ख्याल आया? सुनी ने पूछा। आज जिसने हर तरफ एक क़यामत सी मचाई हुई थी, सास सुल्तान के देयर अबाउट्स नहीं मिल रहे थे कहीं, इनका फ़ोन बंद था और वो कहाँ था किसी की कुछ खबर नहीं थी। वो कहाँ था ये कोई दिन से किसी को मालूम नहीं था। मेरा ख्याल है कि दोनों बाप बेटों ने कोई ऐसा माहिदा कर रखा है जिसके तहत सास सुल्तान एक मखसूस वक्त के लिए अपना वेयर अबाउट्स बताए बगैर गायब रह सकता है। तो आज क़यामत का सूर क्यों बचाया गया? अगर एग्रीमेंट है तो आज इस माहिदे के तहत सास सुल्तान को ऑफिस में मौजूद होना चाहिए था, मगर वो नहीं आया। ओह, जूनी ने होंठ सुखेड़े। फिर बस आखिरी खबर आने तक की तलाश जारी थी। मैं तो पेंट्री स्टॉक चेक करने के बहाने खिसक आया, वरना अभी तक किसी सरगर्मी में मुब्तला होता। जूनी बेख्तियार हंस दिया। लेकिन एक बात है, बॉस वाकई परेशान था, यूँ जैसे इसका जहन माऊफ हो गया हो। वो बैग की हरकत कर रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और इनका बस नहीं चल रहा था। जो सामने आ रहा है इसके साथ क्या कर डाले। इंटरेस्टिंग, जूनी ने शानिश गए। सास सुल्तान बच्चा तो नहीं है, बॉस के लिए तो है। राजी ने सर हिलाया। देखते हैं सुबह तक क्या होता है। अगर वो वापस ना आया तो तुम नई परेड के लिए तैयार रहना, जूनी ने जमाई लेते हुए कहा और कंफर्टर अपने पर खींच लिया। अल्लाह करे वो सुबह तक आ जाए, वरना बॉस ने तो मुल्क के कोने कोने में मौजूद कुओं में बांस डलवा देने हैं। राजी का लहजा परेशानी लिए हुए था। कोशिश करना कि बात से ढूंढ कर ले आने वाले के लिए बड़ा सा इनाम का ऐलान करो और वो किसी को पास डालने का फ़ायदा भी हो। जूनी ने अगली जमाई रोकते हुए मुंह पर हाथ रख कर कहा और करवट बदल कर आंखें मूंद लीं। राजी चित लेटा नाइट बल्ब की रोशनी में छत को घूर रहा था। इसे आने वाले कल से खौफ आ रहा था। तुम्हें मेरा पता किसने बताया? नादिया ने अपने सामने बैठे शख्स के सवाल पर इसे मुस्कुरा कर देखा। एक ऐसी चीज़ जिसकी मौजूदगी माहौल को मुअत्तर कर रही हो, इस किस्म का इसके पते का पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसा अंदाज़ा है जो मेरे कद से बहुत बड़ा है। मैं वाकई संजीदगी से पूछ रहा हूँ। चलें हम अल्फाज बदल लेते हैं। नादिया ने अपने करीब रखे कुशन को, जो वो कमर के पीछे से निकाल कर साइड पर रख चुकी थी, गोद में रखते हुए कहा, एक ऐसी जगह जहाँ हर तरफ तारीकी का राज हो, वहाँ आने वाली मध्यम सी रोशनी की
सिमट भी किसी से मालूम करने की ज़रूरत नहीं रहती, ना ही इसके लिए कोई कुतुबनुमा दरकार है। मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हें अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा करना आता है। वो मुस्कुराए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बहुत महदूद सी ज़िंदगी गुजारी है, इसीलिए मेरे पास अल्फाज भी बहुत कम हैं। मगर मुझे भी कहना पड़ेगा कि आपके सामने बैठ कर न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अच्छी अच्छी बातें ही करती चली जाऊं। इसने संजीदगी से कहा और कहते कहते थोड़ा तौक़ुफ़ किया। और मैं इस चीज़ को इस बात की अलामत के तौर पर ले रही हूँ कि मैं ठीक जगह पहुँची हूँ। बात दरअसल ये है कि तुम्हारी उम्र में जज्बातीपन अपने अरूज पर होता है। इस उम्र में चीज़ें ऐन वैसी ही दिखाई देती हैं जैसे इंसान देखना चाह रहा होता है। तुमने भी एक बात फ़र्ज़ कर ली कि आजकल जज्बात की जिस यलगान ने तुम्हारे अंदर उधम मचाया हुआ है, इसकी तस्कीन, इनकी गुत्थियों का सिरा, इसके मुतालिक रहनुमाई तुम्हें मुझसे मिल सकती है। इसी वजह से बगैर जांचे और परखे मैं तुम्हें मीनार नूर या चाहे इतर नज़र आ रहा हूँ। एक मुखलिसाना मशवरा ये है कि हम अपने अंदर उधम मचाने वाले इनकलाब को परखो, समझो, इसका तफसीली जायज़ा लो और फिर फैसला करो कि ये कहीं कोई वक्ती उबाल तो नहीं। और अगर जान जाओ कि ऐसा ही है तो इसमें शर्मिंदा मत होना, क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ अतवार में वक्ती इनकलाब, जिनकी नौयत मुख्तलिफ होती है, आते ही रहते हैं। मेरे अंदर कोई इनकलाब नहीं आया। नादिया ने गैर जज्बाती अंदाज में कहा। मेरी ज़िंदगी अब तक कुछ ज़्यादा आसान नहीं गुजरी। जिस जज्बाती और उधम की बात आप कर रहे हैं, इनका दाखिला अक्सर आसूदा ज़िंदगियों में और शख्सियतों पर होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी बका की जद्दोजहद करते गुजारी है। मेरे जैसे ज़िंदगियों में जज्बाती उबार का गुज़र बहुत ही कम होता होगा। मैं वाकई किसी रास्ते की तलाश में हूँ। मैं वाकई किसी मंजिल के हसूल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहती हूँ। मैं वाकई किसी अलूही हस्ती से हमेशा के मुंसलिक हो रहना चाहती हूँ और इसीलिए आपके पास हाजिर हुई हूँ। लेकिन वो एक बार फिर रुकी और अपने मुखातिब की तरफ देखने लगी। मुझे लगता है, लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद इसने फिर से कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि उम्र पर अगरचा मैंने लाशऊरी तौर पर गुनाह से बचने की कोशिश की है। कुछ गुनाह इंसान लाशऊरी तौर पर कर जाते हैं जो शायद आप इसकी नज़र में गैर अहम, मामूली और नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले होते हैं, मगर पकड़ इनकी भी होती है। शायद ऐसे ही किसी गुनाह की पादाश के तौर पर आप मुझे मेरी दरख्वास्त को संजीदगी से सुनने से इनकार कर रहे हैं। इसके आवाज़, इसके लहजे की गैर मामूली संजीदगी के बावजूद लरज़ गई और शायद वो आ भी गई। तुम्हारा असल कहाँ से मुतालिक है? वो जैसे छिटक कर बोले थे। पाकिस्तान से, नादिया के लहजे में तयक़न उतरा। यहाँ कब से रह रही हो? उन्होंने दूसरा सवाल किया। मैं यहाँ रहती नहीं आई हूँ। पढ़ाई के दौरान चंद महीनों का वक्फा करके मैं सिर्फ आपसे मिलने और आपसे बातें करने यहाँ आई हूँ। मिला करो, आती रहा करो। उन्होंने उठकर नादिया के सर पर हाथ रखा। क्या वाकई? क्या आपको यकीन है? नादिया की आंखों में मुसरत और बेयकीनी थी। यकीन की कुछ मंजिलें होती हैं, लेकिन मंजिलों को तय करने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। चलो पहला कदम उठाते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। धुंध के इस पार तुम्हारे लिए क्या रखा है? वो मुस्कुरा कर बोले थे।